Good morning, student. Good morning to everyone. Now, today I am going to discuss the topic lines and angles, class 9th, chapter number 6, lines and angles. In this chapter included this concept or this content. First is I will discuss the introduction of lines and angles. There are 2 points. First, to discuss the important part, introduction of our lines and angles. Lines and angles is important role play in class 9th or other higher classes also, because you have already learned in a previous classes, class 6, 7, 8 and 9. So now in this session or in this class you will studies about the lines and angle very deep introduction, and many of the things are parts of a lines and angle and many types of angles also. So first to discuss the in this lines and angle contain the some important part. First is introduction, second in angles in a daily life. एंगल्स इन डेली लाइफ के जो एंगल्स हैं उनका हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशंस, कुछ डिफिनीशन जैसे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जैसे एडजेसेंट एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट. पॉइंट क्या है? पॉइंट. एंड नेक्स्ट वन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है. इट मीन जब भी लाइन ऐसे होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब लाइन ऐसे हो पैरेलल लाइन होगी तो पैरेलल लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन. नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन मीन्स लाइन इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट्स 90 degree. Forming an angle of both rays will be a 90 degree. It's a perpendicular. Next one is angle. Angles, discuss the angles and types of angles. And the next one is a parallel line and a transversal. Parallel line and transversal, it means parallel line, two lines are a parallel, so there will be a no any intersection point. And a transversal, if two parallel line intersect the third line, so third line is called the transversal. It means discuss the transversal and parallel line also. Next one is now start the one by one concept or a one by one content in a lines and angle. So first introduce the lines and angle. What is line and what is angle? So first discuss in a maths geometry, lines and angles are important tools. Lines and angles are important tools. If any object, an idea, that is called an lines, and it is represented as a straight curve. ज्योमेट्री में आपका लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर लिखा गया है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इन द आइडिया दैट इज़ कॉल्ड द लाइंस, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइंस, इट रिप्रेजेंटेड एज द स्ट्रेट कर्व. ये कैसे रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट कर्व की तरह. लाइक एज दिस स्ट्रेट लाइन, this straight line represent the line, this line having a no end point but line segment having a two end point. It means this line having a no end point, you can increase the both side. And a line segment having a two end point, line segment having a two end point but line having a no end point. This is a line segment. In this discuss the line, not a line segment. So next one is angle. एंगल इज रिलेटेड विद द लाइन्स. एंगल्स जो है वो लाइन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, बिकॉज जब भी दो लाइन्स या दो रेज जब एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी में जो एंगल बनता है दिस इज अ एंगल. इट मीन एंगल्स इज रिलेटेड विद दैट लाइन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज क्रिएटेड द एंगल्स.
and that intersection point is called as vertex. Here we see about the type of lines and angle in the math. It means related to the angles is related with the lines angles से related है, that is cross section of a two lines. ये two lines का cross section is created the angles, and that intersection point, this intersection point is called the vertex. Here we see about the some angles, and this is angles. This intersection point is called the vertex. It's the angles, and we will learn about the types of lines and angle in next point. अब हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स क्लियर कर लिया कि लाइन क्या है और एंगल्स क्या है, क्योंकि हम लाइन और एंगल्स में दो पॉइंट्स से डिस्कस कर रहे हैं. इट मीन इस चैप्टर में लाइन से एक अलग पार्ट एंगल्स है, तो हम फर्स्ट लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम एंगल्स के बारे में. लाइंस मीन्स कि लाइंस क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, कितनी वेराइटीज़ की लाइंस हैं. सिमिलर टाइप से एंगल्स क्या है, एंगल्स की कितनी वेराइटीज़ हैं, कितने टाइप्स के एंगल हैं, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट डिस्कस द एंगल्स इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम किस टाइप से एंगल्स के यूज़ कर रहे हैं. सो फर्स्ट इफ़ वी लुक अराउंड अस वी विल सी एंगल्स एवरीवेयर. हम जहाँ पर भी देखते हैं डेली लाइफ में, हर एक जगह पर कहीं न कहीं या किसी न किसी तरीके से एंगल्स का यूज़ किया जा रहा है. बट उसको समझने की बात है कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. सो लुक सी अराउंड अस. दिस इज fish and this is aeroplane. Both represent the angles. How to represent the angles? This is an angle. This is an angle. This is angle. This is also an angle. This is angle. It means in this situation in daily life we use the angles. Scissors also use the angles. This is an angle. This is an angles. So this point is also represent the angle. This point is also represent the angle. And next one is basic terms and definition. So first discuss the one by one. First discuss the line. What is the line? A straight path extended in a both direction with no end point. A straight path extended in a both direction with no end point. ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको आप दोनों साइड से इंक्रीज कर सकते हैं. इट मीन दोनों साइड से आप बढ़ा सकते हैं. उस टाइप्स की जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द लाइन. दिस इज कॉल्ड द लाइन. लाइन हैविंग अ नो एनी एंड पॉइंट यू कैन एक्सटेंड बोथ साइड. नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट. Line segment is a part of a line that includes 2 points and called the end points and all the points between them. Line segment a part of a line that includes the 2 points. देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस इतना ही है कि लाइन्स हैविंग अ 2 एंड पॉइंट. लाइन हमेशा कोई एंड पॉइंट नहीं रखता, बट लाइन सेगमेंट हैविंग अ 2 एंड पॉइंट. इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन. दिस इज रिप्रेजेंट द 2 एंड पॉइंट्स and it is known as line segment. Next one is the ray, a part of a line with a one end point that is continuous with the end in one direction. रे means a line having only one end point. जिस लाइन में केवल एक ही एंड पॉइंट होगा और एक साइड से आप उसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं. सो इट इज़ अ रे. इन दिस definition is also given here, a part of a line with a one end point that is continuous with the end in one direction. जिसको आप वन डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन हेयर. दिस इज increase in this direction, you can increase in the direction but in this direction is end point. एक साइड में इसका end point है, दूसरे साइड में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इट्स अ रे.
Now next point is points. Some points are located here and exact point are location. किसी भी points ये dot, this is a dot point, this is dot, and this is known as a point. कोई भी एक लाइन, इट मीन ऐसे हम डॉट कर दें, सो इट इज़ अ पॉइंट. ये भी एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है. तो किसी भी चीज़ का लोकेशन इट्स रिप्रेजेंट द पॉइंट्स. सो नाउ इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट. सो ऑल dots are represented the points. Next one is intersecting line and non-intersecting line. Which type of lines are intersecting and which type of lines is non-intersecting? So first discuss the intersecting line. The lines that cross. ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करे कहीं पर या किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को अगर क्रॉस करती है, सो इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन. ये लाइन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ क्योंकि ये एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. सो लाइंस दैट क्रॉस, तो ये एक पॉइंट पर क्रॉस किया, सो दिस पॉइंट्स इज इंटरसेक्शन लाइन. इंटरसेक्शन, बोथ लाइन्स इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन लाइन and this point is called the intersecting points. Next one is non-intersecting line. Which type of lines is non-intersecting line? If two lines are parallel lines, अगर दो lines कहीं न कहीं parallel lines हैं तो दोनों lines एक दूसरे को कहीं पर भी intersect नहीं करेंगी. So both lines is called the non-intersecting line. It means line that never cross and are always the same distance apart. एक दूसरे से हमेशा और हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहते हैं. कभी भी इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिस्टेंस अगर एक जगह पे सेम है तो हर एक पॉइंट पर इनके बीच का गैप जो है, डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहेगा. इट मीन पैरेलल लाइंस, बोथ लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. हमेशा और हमेशा इक्वल होगा. This is first line and this is second line and both distance is everywhere is constant. It means both are a parallel line. So now next one is example of non-intersecting line. कुछ non-intersecting lines के हम examples देखते हैं. Hardwood floor. Hardwood floor. Floor means this type of a floor is intersecting non-intersecting lines. This is represented the floor, hardwood floor, these lines, these lines, these lines. So all lines is not intersecting line, so it is represent the non-intersecting line. Second one, opposite side of the windows, desk, etc. अगर किसी भी room में, this is a room and opposite side of the windows, this one window is here, another window is here. So both windows is represent the opposite side and both are a parallel, not intersecting. So both are a parallel line. Next one, parking slot in a parking park. पार्किंग प्लॉट में जो भी पार्किंग की जाएगी, सो इट इज़ अ पैरेलल लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ये भी एक एग्जांपल है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का. पैरेलल पार्किंग भी नॉन इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल है. स्ट्रीट एंड लरमाइन एंड Leclerc in a street, it is also represent the parallel line. It means non-intersecting line. Next one is perpendicular line. Which type of lines are perpendicular? कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होगी? अभी तक हमने दो टाइप्स के लाइंस पढ़ा. पहला लाइंस हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरी लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द परपेंडिकुलर लाइन. विच टाइप ऑफ लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन? अगर दो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, सो बोथ टाइप ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन. अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों लाइन्स को हम बोल सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर लाइन्स. We can say that both lines are perpendicular lines. So now next one is, it means two lines that intersect to from four right angles. So it is a perpendicular line. Examples of a perpendicular line.
Many of the examples in a daily life also, so lines are a perpendicular line. So one example is given here, two roads, this is one way and this is the second way. So it's both are exact 90 degree, intersection point is exact 90 degree. So both lines is known as a perpendicular line. So next one is angles. अब देखिए ये कुछ पॉइंट से और कुछ डेली लाइफ में यूजेस से हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बारे में डिस्कस किया। अब हम पॉइंट्स पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और अगला पॉइंट आपका है एंगल्स, कि एंगल्स कौन सा एंगल्स कैसा है और कौन से एंगल्स में किस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इन ए ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय द टू रेज, दो रेज से जो फिगर फॉर्म्ड होता है वही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल्स। जैसे टू रेज ये हो गया, इससे एक एंगल्स, एक रेज, टू रेज से एक फिगर फॉर्म्ड होता है, ये फर्स्ट रेज, ये सेकंड रेज, एक फिगर फॉर्म्ड हुआ, यही फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एन एंगल। इट मीन एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय द टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, जहाँ पर दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट हो, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, एंगल का वर्टेक्स ऑफ द एंगल। And the magnitude of the angle is the amount of rotation. Magnitude of the angles is the amount of rotation that separate the two rays and can be measured by the considering the length of a circular arc swept out when one rays is rotate about the vertex to coincide with the other। देखिए फर्स्ट हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिया कि वर्टेक्स क्या है, एंगल क्या है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन का अमाउंट क्या होगा, द एंगल्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज द रोटेशन ऑफ द अमाउंट। एक लाइन यहाँ पर फिक्स है या एक रे यहाँ पर फिक्स है, दूसरी रेस को हम ऐसे ऐसे मूव कराते जाएं, तो कभी ये यहाँ पर, कभी ये यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये रोटेशन का जो अमाउंट है, दिस इज नोन एज द एंगल्स। ये एंगल्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वही उसका मैग्नीट्यूड है। इट मीन कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ही उसका मैग्नीट्यूड है। सो सेपरेट ऑफ टू रेज एंड कैन बी मेजर्ड बाय द कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क स्वेप्ट, कि जितनी दूर तक वो स्वेप्ट हो रही है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो घड़ी में देखते हैं 2 सुई या 3 सुइयाँ हैं, 3 नीडल हैं घड़ी में, और जैसे जैसे वे स्वेप्ट करती जाती हैं, लाइक एज दिस इज़ अ क्लॉक पे देखिए 1 एंड अनदर इज देयर। अब ये इनका लोकेशन कुछ टाइम के बाद चेंज होता जाता है, तो जैसे जैसे लोकेशन चेंज होता जाएगा तो वैसे वैसे ये एंगल्स, ये दूसरी रे क्या हो रही है, स्वेप्ट हो रही है, तो ये स्वेप्ट, ये अमाउंट ही क्या है, एंगल्स। In one rays is rotate about the vertex is coincide with the other. So many of the types of angles is given here. So first is acute angle, पहला एंगल acute angle, दूसरा एंगल right angle, तीसरा एंगल obtuse angle, fourth straight angle, fifth reflex angle, sixth adjacent angle, seventh linear pair of angles, and last one is vertically opposite angles. So we will discuss the one by one angles in next point. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिस्कस द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज द एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है तो इस टाइप्स के एंगल्स क्या बोले जाएंगे, एक्यूट एंगल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है, सम एग्जाम्पल्स गिवन है। 33 degree, it is acute angle because this is a greater than 0 degree and less than 90 degree. 45 is greater than 0 degree and less than 90 degree. 18 also, 88 also. So all example is given here, it is acute angles example. Acute angles example. The measure of an angle with a measure between 0 and 90 or with the less than 90 radian, less than 90 degree और 90 रेडियंस। अगर
कोई भी एंगल्स 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है तो इस टाइप्स के एंगल्स आपके क्या बोले जाएंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन इज सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं एक्यूट एंगल्स के। जैसे एक टेबल, ये एक बुक्स हो गए, उसके ऊपर एक ऐसे बुक्स रखी गई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज रिप्रेजेंटेड द एंगल्स, ये एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ और फिगर्स हैं, ये फिगर्स में देखिए ये जो बना गया फिगर ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक और पॉइंट, ये देखिए ये एंगल्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स के भी कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ से रिलेटेड आपको शो किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एंगल। राइट एंगल के लिए कंडीशन है एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, कोई ऐसा एंगल्स जो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री हो, केवल उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंगल्स का वो 90 डिग्री हो, इस टाइप्स के एंगल्स क्या बोले जाएंगे, राइट एंगल। एन एंगल्स फाउंड बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ अ टू स्ट्रेट लाइन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो भी दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो 90 डिग्री पर होगा तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या, परपेंडिकुलर लाइंस और अ परपेंडिकुलर एंगल्स, एंड दिस इज नोन एज अ, दिस लाइंस इज परपेंडिकुलर लाइन बट दिस एंगल इज नोन एज अ राइट एंगल। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है जो राइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपकी क्लॉक में 3 o'clock टाइम हो रहा है तो ये दोनों निडल्स के बीच का जो एंगल्स होगा राइट एंगल्स। ये एक पजल गेम, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट 90 एंगल एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द 90 डिग्री एंगल। ये डेली लाइफ्स के कुछ एग्जाम्पल्स शो किए गए हैं जो राइट एंगल से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट वन इज सम अदर एग्जाम्पल्स आल्सो गिवन हेयर जो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल आप किसको बोलेंगे, एन एंगल इज लेस देन, एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉलर हो। एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, सो दिस टाइप ऑफ अ एंगल इज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल। An angle measurement is an angle measure greater than 90 degree but less than 180 degree. So many of the example is given here. It is obtuse angle. Represent all angles is obtuse angle. So some example is also given here of obtuse angle. So it is obtuse angle. It's a obtuse angle also, obtuse angle, and another example also given here. So it's a obtuse angle, and next angle is discuss the straight angle. Which type of angle is straight angle? एन एंगल इज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे हमने राइट एंगल में देखा कि अगर एंगल्स का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री सो इट इज़ अ राइट एंगल, बट अगर एंगल्स का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो सो इट इज़ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। स्ट्रेट एंगल is the change the direction of the point. Straight angle is change the direction of a point the opposite way, and it look the straight line. It is measure 180 degree, half revolution of the two right angles. दो राइट एंगल से एक हाफ रिवॉल्यूशन बनता है, दो राइट एंगल से एक हाफ रिवॉल्यूशन, सो इट इज हाफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज 180 डिग्री, इट मीन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन सम एग्जाम्पल इज आल्सो गिवन हेयर टू स्ट्रेट लाइन। स्केल में जो एंगल्स 180 डिग्री, ये देखिए डेली लाइफ में सन के सामने के जो रेज आती हैं वो स्ट्रेट लाइन आती हैं, रेज जो सन की आती हैं ये हम कंपास और प्रोटेक्टर का जो यूज़ करते हैं, तो प्रोटेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। एंड सम अनदर एग्जाम्पल इज आल्सो गिवन हेयर, दिस इज रिप्रेजेंट द tennis hard floor, and this is also represent the straight angle. Now next angle is reflex angle. ऐसा एंगल
an angle which is more than 180 degree, more than 180 degree and less than 360 degree, so this type of a angle is known as the reflex angle. ऐसा angle जो reflex angle is more than 180 degree but less than 360 degree, ऐसा angle जो 180 से greater हो और 360 से less हो, इस टाइप्स के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स के लिए टू कंडीशन इज कंपल्सरी. वन इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड वन इज अ कॉमन आर्म. In a geometry, adjacent angle often the shortened as a adjacent side are angles that have a common rays coming out of the vertex going between the two other rays. दो अदर रेज के बीच में एक कॉमन रेज आएगी. इन अदर वर्ड दे आर एंगल्स दैट साइड बाई साइड और एडजेसेंट. ये और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल. कब? जब एक कॉमन आर्म हो, ये एक कॉमन आर्म हो गया और दो अपोजिट साइड के बीच की एक कॉमन आर्म आती है, तो दो अपोजिट साइड यहाँ पर ये हो गई, दो अपोजिट साइड के बीच की एक कॉमन आर्म हो गई, ये अपोजिट साइड्स हो गई, आर्म्स हो गए, ये कॉमन आर्म्स हो गया और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया. तो ये और ये एंगल रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंट एंगल्स को. इट मीन एडजेसेंट एंगल्स इज शॉर्टेंड एज एडजेसेंट साइड आर एंगल्स दैट हैव अ कॉमन रे. जो एक कॉमन रे रखता हो कमिंग आउट ऑफ द वर्टेक्स गोइंग बिटवीन द टू अदर रेज. दो अदर रेज के बीच में एक वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रेज. इट्स अ कंपल्सरी फॉर एडजेसेंट एंगल. सो नेक्स्ट वन इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हैं? दिस इज द लीनियर पेयर. इट मीन सम ऑफ टू एंगल्स इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. सो बोथ एंगल्स इज नोन एज linear pair. It means A is a linear pair of B and B is linear pair of A. So A plus B is equals to 180 degree. It means a pair of adjacent angle formed by intersecting line and linear pair of angles are supplementary. एक दूसरे के supplementary हैं. It means A plus B is equals to 180 degree. जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री होते हैं तो दोनों एंगल एक दूसरे के supplementary होते हैं. Similar points is given here. तो linear pair angles is sum of two angles is 180 degree. Next one is vertically opposite angle. Vertically opposite angles किसको represent करेंगे? In a geometry, pair of angles is said to be vertical, also opposite and vertically opposite, which is the abbreviate as vertically opposite angles. If the angles are formed for the two intersecting line and that angles are not adjacent and they shall share a vertex, such angles are equal in measure and can be described or congruent. जब भी दो in lines, first line and second line, two lines are intersecting to each other if one intersection point, so these angles, both angles is represented the vertically opposite angles. A and B represented the vertically opposite angles. अब यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको लेना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल तो कभी भी आप ऐसे एंगल्स नहीं लेंगे जो एक दूसरे के एडजेसेंट हो. इसका मतलब कि अगर आप ये बी है तो ये ए नहीं होगा, क्योंकि अगर ए और बी ये हुआ तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे. तो वर्टिकली अपोजिट हमें वो एंगल्स लेना होगा जो इसके जस्ट अपोजिट साइड में हो और इसमें कोई कॉमन आर्म्स ना हो, बट हम कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर सकते हैं. वर्टेक्स दोनों के लिए कॉमन होगा बट हमें कोई आर्म्स कॉमन नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब फर्स्ट एंगल इज बी एंड सेकंड इज ए और दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों की साइड से सेम है. इट मीन रेज दोनों की सेम है तो साइड सेम है तो एंगल्स भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं. सो इट इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. देखिए पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या है? जब भी दो लाइंस, इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे फर्स्ट लाइन ये हुआ, दो पैरेलल लाइन
को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये टू पैरेलल लाइंस हो गया, ये थर्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये थर्ड लाइन को क्या बोला जाएगा? इट इज़ अ ट्रांसवर्सल। कहीं पर भी कहीं जैसे भी दो लाइंस पैरेलल लाइंस है और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट की, तो ये थर्ड लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इट मीन ट्रांसवर्सल आर अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द टू आर मोर coplanar lines each at a different point is a very useful line in a geometry. Transversal tell us the great deal about the angles. अब इस ट्रांसवर्सल से ही पूरी डीलिंग होगी। इट मीन अगर ट्रांसवर्सल बनेगा तो इसमें कई सारे एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे और इन एंगल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस कंडीशन है कि पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट ओवर द इंटायर लेंथ। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होगी? जब दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो हो वो कांस्टेंट होगी, तो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइन के लिए ये दोनों लाइंस हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइंस को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो थर्ड लाइन इज ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल है। और ट्रांसवर्सल बनाने के बाद हमें कुछ एंगल्स मिल जाते हैं और वो एंगल्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग, सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और लास्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, विच टाइप ऑफ एंगल्स इज करेस्पॉन्डिंग। देखिए पैरेलल लाइंस हमने बोला कि कभी भी जब दो पैरेलल लाइंस होंगी और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। बट इन दिस सिचुएशन बोथ लाइंस इज नॉट पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन हमेशा और हमेशा पैरेलल लाइन होगी तभी तीसरी लाइन। इसका मतलब कहीं पर भी अगर दो लाइन है और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की बात हो रही है, एंगल्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल दो लाइंस कहीं पर भी हैं और तीसरी लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या बन जाएगी? तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल। थर्ड लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। इट मीन an angle had occupied the same relative position each intersection where a straight line crosses to each other, then the two lines are parallel, the corresponding angles are equal. जब दो लाइंस, अब देखिए बोला गया है कि अगर यही यम और यन दो लाइंस हैं, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तब जो ये ट्रांसवर्सल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल करेस्पॉन्डिंग होगा? एंगल 1 एंगल 5 के करेस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंगल 6 के करेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, 3 एंगल 7 के, एंगल 4 एंगल 8 के। ये कंडीशन कब होगी? जब यम और यन दोनों पैरेलल हो जाए और ये जो थर्ड लाइन है ट्रांसवर्सल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो एंगल्स बनेंगे कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा और हमेशा इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखा गया है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कौन से एंगल? द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस द टू अदर। जब दो स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये थर्ड लाइन को क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉसेस टू अदर्स इफ दे टू लाइन्स आर पैरेलल। जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी सो द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड कट बाय द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल से कट किया जा रहा है, then two pairs of angles on opposite side of the transversal and inside the parallel lines and the angles each pair is congruent। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई और थर्ड ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये 5 और 6 ये दोनों अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं,
तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। सिमिलर 7 और 8 एक दूसरे के इक्वल होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इन दोनों एंगल्स को बोला जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इट मीन 5 एंगल 6 के इक्वल है और 7 एंगल 8 के इक्वल है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा एंगल्स होगा? जब ये एक लाइन, टू पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये थर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल ए एंगल एच के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल जी के इक्वल होगा। यही दोनों एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, बिकॉज व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, then two pairs of angles on opposite side of the transversal and outside of the parallel lines and the angles in each pair is congruent। दोनों पेयर्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। जब इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, ये लाइंस और ये लाइंस हो गई, ये इंटरसेक्ट, थर्ड ये लाइंस ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स का सम हमेशा और हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इट मीन दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स D plus F is equals to 180 degree. So now all concept clear, the lines and angle complete the all concepts of class 9th lines and angle. Okay, I hope all the students have understand these points are lines and angle. So next video and the next part I will discuss the some questions related to lines and angles. Okay, thank you students, have a nice day.